Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will solve question number 10 of exercise 9.1 of chapter 9, which is trigonometry. Question readers: two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. Two poles, they are of the same height, they are standing on opposite sides of a road, and from a point between them on the road, the angles of elevation of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. We have to find the height of the poles and the distance from poles from the point. Let us solve this question. Let AB and CD are two poles of height h meters. चलो ए बी और सी डी दो पोल्स हैं, इनकी हाइट h मान रहे हैं हम, h मीटर्स. इस पोल की भी और इस पोल की भी h मीटर्स हाइट है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो BD है, BD रोड है, BD is the road of width 80 meters. तो ये रोड जो है इसकी विड्थ 80 मीटर्स है. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट E है. लेट E be the point on the road in between two poles. यहाँ पे दो right triangles बनते हैं, ABE and CDE. Let us take first this triangle ABE. In right triangle ABE, AB by BE, AB by BE and perpendicular by base P by B is equal to tan 60 degree, which implies AB जो है ये height of the pole, first pole है, ये h के बराबर हमने रखा. तो यहाँ पे AB के बजाय हम लिखेंगे h by BE. BE हमें मालूम नहीं है, तो h by BE is equal to tan 60. tan 60 जो है ये किसके बराबर है? From the table you can see that height of this tan 60 degree. Tan 60 degree is equal to root 3. Tan 60 degree is equal to root 3. यहाँ पे हम लिखेंगे root 3 tan 60 के बजाय, which implies, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h is equal to BE root 3. BE root 3. This is first equation. अब दूसरी ट्रायंगल, in right triangle CDE CD by DE is equal to tan, जो CD है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, P by B, ये tan के बराबर, tan 30 डिग्री, tan
30 डिग्री विच इम्प्लाइज CD चूंकि ये भी दूसरा पोल है और इसकी हाइट भी h मीटर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h बाई DE। DE जो है DE अगर BD 80 मीटर्स के बराबर है तो DE जो है DE इज इक्वल टू BD माइनस BE। तो ये पोर्शन DE ये BD माइनस BE के बराबर है। BD 80 है, 80 माइनस BE, तो यहाँ विच विल बी इक्वल टू DE। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DE के बजाय 80 माइनस BE which is equal to tan 30 degree. Tan 30 degree is equal to 1 by root 3. 1 by root 3 which implies H is equal to, तो H होगा बराबर 80 minus BE by root 3 by root 3. This is second equation. From first and second equation यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इनके बराबर है, H इज इक्वल टू BE रूट 3 और यहाँ पे H इक्वल टू 80 माइनस BE डिवाइड बाई रूट 3। तो ये इक्वलाइज हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यहाँ पे BE रूट 3 बराबर होगा 80 माइनस BE डिवाइड बाय रूट 3 which will be equal to, which implies BE रूट 3। तो यहाँ पे जो ये रूट 3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या यहाँ पे सीधे तौर पर हम ये लिखेंगे कि रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, यहाँ पे लिखेंगे BE रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3 टाइम्स BE which implies 3 times BE is equal to 80 minus BE which implies 3BE। तो ये एक BE माइनस ये हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, बनेगा प्लस BE इज इक्वल टू 80 विच इंप्लाइज 3BE प्लस 1BE हो गया 4BE इज इक्वल टू 80 विच इंप्लाइज BE इज इक्वल टू 80 divided by 4 which will be equal to 4 2s are 8 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8 0, 20। so BE जो है ये 20 के बराबर होगा, 20 मीटर्स, 20 मीटर्स। अब D हमें अब हम D भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ये क्वेश्चन में रब करूंगा, क्वेश्चन आपने आपकी टेक्स्ट बुक पे है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ मैं लिखूंगा तो B इज इक्वल 20 मीटर्स, तो D किसके बराबर होगा, देयरफॉर DE इज इक्वल टू, D जो है ये बराबर होगा 80 माइनस BE विच इज इक्वल टू 80 माइनस B जो है ये 20 मीटर के बराबर निकला 20 विच विल बी इक्वल टू 80 माइनस 20 हो गया 60 मीटर। तो distance between the point and the poles is 20 मीटर and 60 मीटर। तो हमें अब निकालना है हाइट ऑफ दिस द पोल्स, क्योंकि दोनों पोलों की हाइट सेम है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में हमें वी विल सी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हम यहाँ पे इनका वैल्यू देंगे फ्रॉम, या हम सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यू BE का वैल्यू, substituting the value of BE in first equation we get,
तो b का वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हम देंगे h इज इक्वल टू b के बजाय हम लिखेंगे 20√3। तो h जो है ये 20√3 मीटर्स, ये हाइट इन पोलों की ये है। सो या और देयरफॉर height of each pole is equal 20√3 meters. Distance between distances distances of point होगा किसके बराबर 20 मीटर एंड 60 मीटर, 20 मीटर 60 मीटर। तो ये इसका आंसर है। ये हाइट ऑफ द पोल 20√3 मीटर और डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो शुक्रिया, बाकी वसल्लम।